दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बने वैश्विक संगठन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ का 148वां सम्मेलन जिनेवा में चल रहा है। संसदीय कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सहयोग का निर्माण विषय पर महासभा सम्मेलन को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संबोधित किया। वसुधैव कुटुंबकम, that is one earth, one family is the core value of Indian civilization. The theme of India's G20 presidency was One Earth, One Family, One Future. The theme of this debate, that is building bridges for international peace, is reflected in this concept. As the mother of democracy, deliberative and advisory bodies have worked in India since ancient times. These deliberative bodies received foreign emissaries, including those from Greek and Roman empires, even in the 3rd century BC. The famous Buddhist king Ashoka, around 220 BC, sent several ambassadors from India to Southeast Asia to spread the message of peace and non-violence. Further, in 48 AD, Princess of Ayodhya, birthplace of our Lord Ram, went to South Korea to establish diplomatic relations and married their crown prince. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सम्मेलन में कहा कि बढ़ती परस्पर निर्भरता और परस्पर जुड़ाव के युग में दुनिया को नई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। The importance of parliamentary diplomacy in promoting international peace can hardly be overemphasized. Parliamentarians are uniquely positioned to influence government as well as the public opinion. Indian Parliament plays an important role in shaping India's bilateral and multilateral relations effectively. Members of Indian Parliament engage, as elsewhere, actively in various diplomatic activities. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय भागीदारी को बढ़ावा देने में विश्वास करता है। Friends, our parliamentary delegation in various bilateral and multilateral fora have highlighted the need for reforming international governance structures, including UN Security Council and international financial institutions, to reflect contemporary realities. In recent years, multilateral cooperation has encountered unprecedented crises. While in the United Nations, the crisis has manifested in form of funds cut and ever-increasing policy paralysis in its Security Council. Other institutions like Bretton Woods have faced a skepticism of effectiveness. The COVID-19 pandemic has also exposed vulnerabilities of the international system, particularly those of multilateral institutions. Besides, we should work for promoting and facilitating the showcasing of good practices on legislation and oversight. India believes in nurturing parliamentary partnership at the regional and international levels and is also ready to help other countries in capacity building by sharing its knowledge and experience. अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ का 148वां सम्मेलन जिनेवा में 23 मार्च से 27 मार्च 2024 तक है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में 7 सदस्यीय भारतीय दल इसमें शामिल हुआ। अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि की ओर से भारत के खिलाफ टिप्पणी की गई। इसके बाद राइट टू रिप्लाई के तहत भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। IPU members are well aware that Pakistan has an established history of harboring, aiding and actively supporting terrorists. Let me recall that Osama bin Laden, the face of global terror, was found in Pakistan. Madam Speaker, the country Pakistan holds the ignoble record of hosting one of the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. I trust
that Pakistan will draw the correct lessons for the good of its own people. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारत को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके लोकतंत्र का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। I take the floor to reject the preposterous comments made by Pakistan against my country. India is the largest democracy in the world, and I am privileged that many consider the Indian democracy a model to be emulated. Lectures by a country which has an abysmal track record of democracy is laughable. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जोर देकर दोहराया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। As regards the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, they have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from anyone can override this fact. Instead, Pakistan would be well advised to stop its terror factories that continue to launch countless cross-border terrorist attacks in Jammu and Kashmir while farcically claiming to champion the cause of human rights. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि बेहतर होता कि पाकिस्तान इस तरह के आरोपों और बयानों से आईपीयू जैसे मंच के महत्व को कम न करे। अंतर संसदीय संघ राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संसदों और सांसदों को सशक्त बनाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही अन्य पहलुओं में विधायिकाओं के बीच लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना, राजनीति में युवाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना और सतत विकास शामिल हैं। इसका मूल मंत्र है लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए। इस संगठन की स्थापना 1889 में अंतर संसदीय कांग्रेस के रूप में की गई थी। इसके संस्थापक फ्रांस के राजनेता फ्रेडरिक पासी और यूनाइटेड किंगडम के विलियम रैंडल क्रेमर थे, जिन्होंने राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए पहला स्थायी मंच बनाने की मांग की थी। शुरुआत में आईपीयू सदस्यता व्यक्तिगत सांसदों के लिए आरक्षित थी, लेकिन तब से इसे संप्रभु राज्यों की विधायिकाओं को शामिल करने के लिए बदल दिया गया। 2020 तक 180 देशों की राष्ट्रीय संसदें आईपीयू की सदस्य हैं, जबकि 13 क्षेत्रीय संसदीय सभाएं सहयोगी सदस्य हैं। आईपीयू के 5 परस्पर जुड़े रणनीतिक उद्देश्य आईपीयू के प्रभाव को गहरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आईपीयू संसदों और सांसदों को अपने जनादेश का प्रभावी ढंग से और स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के साथ साथ सरकारी कार्रवाई की जांच करने में मदद करता है। आईपीयू संसदों को सभी समाज, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर मौजूद आबादी का प्रतिनिधि बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। आईपीयू संसदों को अधिक लचीला और दूरदर्शी संस्थान बनने के लिए नई तकनीक और क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है। आईपीयू सदस्य संसदों को एक दूसरे से जोड़ता है और संसदीय संवाद और कार्रवाई के लिए वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। आईपीयू का लक्ष्य सभी स्तरों पर विश्वास और पारस्परिक जवाबदेही की संस्कृति को सुदृढ़ करना है। आईपीयू अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं के विकास की सुविधा प्रदान करता है, नींव को मजबूत करता है। साथ ही स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र समेत शांति और आम भलाई के दृष्टिकोण को बढ़ाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मंचों को प्रायोजित करता है, उनमें भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य संघर्षों के दौरान मध्यस्थता था। आईपीयू ने हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ इसका मिशन लोकतंत्र और अंतर संसदीय संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में विकसित हुआ। आईपीयू ने अंतर सरकारी स्तर पर संस्थाओं की स्थापना के लिए काम किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है। संघ का मुख्यालय
अपनी स्थापना के बाद से कई बार स्थानांतरित किया गया है। 1892 से 1911 के बीच ये बर्न स्विट्जरलैंड में था। 1911 से 1914 के बीच ब्रसेल्स बेल्जियम में, 1914 से 1920 के बीच ओस्लो नॉर्वे में, जबकि 1921 से वर्तमान समय तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर संसदीय संघ के कुछ अंग हैं। इनमें असेंबली शामिल है। साल में 2 बार बैठक करते हुए असेंबली सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों के रूप में नामित सांसदों से बनी होती है। असेंबली को अपने काम में स्थायी समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी संख्या और संदर्भ की शर्तें गवर्निंग काउंसिल द्वारा तय की जाती हैं। स्थायी समितियां आमतौर पर असेंबली के लिए रिपोर्ट और मसौदा प्रस्ताव तैयार करती हैं। कोई भी प्रतिनिधि 10 से अधिक मत दर्ज नहीं कर सकता। असेंबली आईपीयू का मुख्य राजनीतिक निकाय है, जिसके माध्यम से आईपीयू के सदस्य संसद वैश्विक मुद्दों पर संसदीय प्रस्तावों को अपनाते हैं। ये अपनी 4 विषयगत स्थायी समितियों सहित शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को खतरे में डालने वाले मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईपीयू असेंबली वर्ष में 2 बार या तो जिनेवा में आयोजित की जाती है या सदस्य संसदों द्वारा आयोजित की जाती हैं। शासन करने वाली परिषद गवर्निंग काउंसिल आमतौर पर साल में 2 सत्र आयोजित करती है। गवर्निंग काउंसिल प्रत्येक सदस्य के 3 प्रतिनिधियों से बनी है। गवर्निंग काउंसिल के एक सदस्य का कार्यकाल एक असेंबली से दूसरी असेंबली तक रहता है। गवर्निंग काउंसिल के सभी सदस्यों को संसद का मौजूदा सदस्य होना चाहिए। गवर्निंग काउंसिल 3 साल की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष का चुनाव करती है। ये कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव भी करती है और संघ के महासचिव की नियुक्ति भी करती है। कार्यकारी समिति अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष, विभिन्न संसदों से संबंधित 15 सदस्यों और समन्वय समिति के अध्यक्ष से बनी है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार और चुनाव में खड़े होने का अधिकार दोनों हैं। कार्यकारी समिति अंतर संसदीय संघ का प्रशासनिक अंग है। सचिवालय महासचिव वर्तमान में कैमरून के मार्टिन चुगोंग के निर्देशन में संगठन के कर्मचारियों की समग्रता का गठन करता है। संसदों के महासचिवों का संघ अंतर संसदीय संघ का एक सलाहकार निकाय है। आईपीयू के कानून में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव असेंबली की बैठक से कम 3 महीने पहले संघ के सचिवालय को लिखित रूप में पेश किया जाता है। सचिवालय ऐसे सभी प्रस्तावों को तुरंत संघ के सदस्यों को सूचित करता है। ऐसे प्रस्तावित संशोधनों पर विचार स्वचालित रूप से असेंबली के एजेंडे में रखा जाता है। कोई भी उप संशोधन असेंबली की बैठक से कम 6 सप्ताह पहले संघ के सचिवालय को लिखित रूप में पेश किया जाता है। सचिवालय ऐसे सभी उप संशोधनों को तुरंत संघ के सदस्यों को सूचित करता है। साधारण बहुमत के माध्यम से व्यक्त गवर्निंग काउंसिल की राय सुनने के बाद असेंबली ऐसे प्रस्तावों पर 2/3 बहुमत से निर्णय लेती है।